Respected Pidaji, Dr. Subhas Vidyalanka ji, and respected and honorable parents, sisters, and beloved children. Welcome to the Vedic Satsang. By God's grace, by God's blessing, we are in the Satsang. And उनमें भी Vedic Satsang. So today I will explain to Vedic mantra Vishnu karmani pashyata yato vratani pashpase indrasya yujya sara. This mantra is of Rig Veda, Mandal 1, Sukta 22 and hymns number 19. So, from this mantra, with this mantra, we know that God's activities, whatever God created, God have created, so we see. So here is Vishnu Karmani Pashyata. First, I will do meaning. Vishnu. Vishnu means of God. Vishnu is of God. Karmani. Karmani means the creation and the actions. Karma means deeds, karma means actions, karma means creation, and pashyata means look at. Pashyata means watch. Pashyata means observe. And yato vratani pashpase. Yato means thence. Yato means from that. Vratani means deeds. Vratani means also actions. Vratani means laws, L-A-W. So, and Indrasya Yujya Sakha. Indrasya means of souls, of spirits. And Yujya means greatest. Sakha means friend. So it means Vishnu Karmani Pashyata Yato Vratani Paspase Indrasya Yujya Sakha. Watch the creation and actions of Vishnu.
Look at the creation and action of the God. From that, thence the souls know and observe the law and discipline of their existence. Vishnu means God is the friend and constant companion of the soul. You can see here like this poem. Look at the works of God from which man can learn this duty. Soul's true friend is the Lord, who is maker of all beauties. So, first we should think about Vishnu. Who is Vishnu? What is the meaning of Vishnu? When we observe this word, then we know that Vishnu word is derived from Vish, meaning pervading, Vyapti. So Vishnu means who is everywhere. As space is everywhere, similar to who is everywhere is called Vishnu. विष्णु का जो अभिप्राय है, विष्णु का जो मीनिंग है, अंग्रेजी में जितना बोलना चाहिए मैं बोल दिया विष्णु शब्द का। अब मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। डू यू नो, इफ मे आई आस्क यू that butter, ghee, where is ghee in the milk? I am asking you, in other words, if I ask you कि please tell me कि where is the rus is in the sugar cane? Do you know sugar cane? कुसियार या ईख। यदि मैं आपसे पूछूं, should I ask, तो आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर क्या देंगे कि भाई ईख जो है, शुगर केन जो है, उसके हर एक पार्ट में क्या है? जूस है, रस है। ऐसे ही जो घी है, बटर ऑयल जो है, वो दूध के कण कण में समाया हुआ है। तो ऐसे ही सिमिलर टू कि विष्णु इज दैट
whose existence is everywhere, जिसकी सत्ता हर जगह है। आपको पता है हम सभी अपने आप को आस्तिक कहते हैं कि हम सभी आस्तिक हैं। वी ऑल आर आस्तिक। परंतु आस्तिक का मतलब क्या है? आस्तिक व्यक्ति बनता कब है? क्या केवल भगवान को मान लिया वो आस्तिक हो गया? आस्तिक की जो पहली भावना है, फर्स्ट जो इमोशन है, वो है कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार करना। क्रिएटर, गॉड इज क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट गॉड इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑफ द होल ब्रह्मांड। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, when we accept these things, then we are be आस्तिक। हम आस्तिक होते हैं, हम आस्तिक बनते हैं। We are become आस्तिक। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सृष्टिकर्ता? सृष्टिकर्ता क्या है? सृष्टिकर्ता है मतलब सृष्टि को बनाने वाला। सृष्टि को बनाने वाले का मतलब क्या है? सृष्टि को बनाने वाले का मतलब है कि वो सभी क्रियाएं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रियाएं, जिसका कोई न कोई, जिस क्रिया को करने वाला है कोई ना कोई। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज अ सृष्टि। अर्थ एक सृष्टि है। तो अर्थ सृष्टि है का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी बनने का वह सभी क्रियाएं, जिन क्रियाओं के द्वारा ये पृथ्वी बनी है, और साथ साथ पृथ्वी बन करके इसको जो स्टेबल रखी हुई है जो क्रियाएं, वो सभी क्रिया, ये सृष्टि है, ये सृष्टि। तो इस क्रियाओं को, इस पृथ्वी इत्यादि पूरे ब्रह्मांड जो है, इन सभी क्रियाओं को जो करने वाला है, इसमें जो भी एक्शन है पृथ्वी के अंदर जो भी गति है, ये सभी गति अपने आप में नहीं है। अच्छा बताओ, जैसे सपोज दैट इफ वी स्विच ऑन, यदि हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? पंखा चलने लग जाता है, पंखा में क्रियाएं होती हैं। तो क्या पंखा में स्वतः क्रियाएं हैं, क्रिया होती है? हाँ, ये ठीक है कि पंखा के अंदर, फैन के अंदर जो है उस चलने का सामर्थ्य है, तभी वह चल रहा है। यदि चलने का सामर्थ्य न हो तो वह नहीं चल सकता, चाहे कितना भी स्विच ऑन करें। परंतु जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे और उस जो वायर के माध्यम से जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं जाएगी, तब तक पंखा में क्रियाएं नहीं हो सकती है। पंखा में अपने आप क्रियाएं नहीं हो सकती। क्यों? कि इन दिस वर्ल्ड टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज एनिमेट एंड सेकंड वन इज इनएनिमेट। एक है जड़ और दूसरा है चेतन।
जड़ पदार्थ में अपने आप स्वतः ही क्रिया नहीं हो सकती जब तक कि कोई बाहर से उसमें कोई चेतन तत्व न क्रिया करे। जब तक कि उसमें चेतन तत्व कर्ता न उसका बने तब तक उसमें क्रिया नहीं हो सकती। हम सभी जो क्रिया करते हैं, देखो भगवान की क्रिया में और हमारी क्रिया में क्या अंतर है, और हम अपनी क्रिया से हम भगवान को नापने चलते हैं, भगवान को समझने चलते हैं, और उससे क्या भ्रांतियां होती है, क्या भ्रांतियां हुई है, वो अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। हमारी क्रिया क्या है? अच्छा जी, हम कंप्यूटर बनाते हैं, वी क्रिएट कंप्यूटर, वी मेक कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर बनाते हैं, जिसको कहते हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमने इसका आविष्कार किया, हमने इसको बनाया। अच्छा बताओ जी, ये जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, एक पहले इस कंप्यूटर को मोटे रूप में हार्डवेयर जो है इसका पूरा, इसको ले लो, जिसको हम कंप्यूटर कह रहे हैं, ये कंप्यूटर, इससे पहले जो छोटे छोटे पार्ट्स बनी हुई है, पहले से उस बनी हुए जो पार्ट्स है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया है, उन सभी पार्ट्सों को लेकर के यहां पर इकट्ठा कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि हमने कंप्यूटर बना दिया। इसे क्या पता चला? ये कंप्यूटर रूप में जो हुआ, इसमें जो हमने क्रिया, ये वास्तव में क्रिया का अंतिम रूप है। इससे पहले की क्रिया हम नहीं सोच विचारते हैं, नहीं सोचते विचारते हैं कि भाई इसमें जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, वो पार्ट्स जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया, किसी दूसरे कंपनी ने बनाया है। अब उससे भी और थोड़े गहराई में चले। अब यदि कोई पार्ट्स बनाता है, पार्ट्स बनाने की जो क्रिया करता है, जो कुछ भी मटेरियल लेता है, यदि इस संसार में वह मटेरियल ना हो तो वह उस पार्ट्स को बना नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति भी, वह कंपनी भी, जो भी पार्ट्स, चिप इत्यादि को जो कंपनियां बनाती है, कंपनी जो बनाते हैं, उसमें वह भी एक तरह से अंतिम क्रिया ही है। परंतु हमारी अंतिम क्रिया होती है जिससे हम किसी चीज का निर्माण करते हैं और अपने आप को कर्ता कहते हैं। एक कुम्हार है, एक पॉट मेकर है, कुम्हार मींस पॉट मेकर, एक पॉट मेकर है, एक घड़ा बनाता है। और घड़ा जिस रूप में हो गया, क्या हम कभी ये सोचते हैं, हम विचारते हैं कि घड़ा तो उसने जो अंतिम क्रिया क्या किया, वो मिट्टी इत्यादि लिया और उसको एक करके और उसको बना दिया, वह घड़ा के रूप में हो गया। परंतु वह मिट्टी पहले से जो मौजूद है, उसमें जो वो उस रूप में क्रिया होते होते जो मिट्टी के रूप में हुआ, और जब घड़ा भी बन जाता है और घड़ा भी जो स्टेबलिश्ड रहता है जिस रूप में, उसमें तो क्या करता है वह मेकर जो है, पॉट मेकर, तो उसको स्टेबलिश करता नहीं है। उसके हर क्षण उसमें जो क्रियाएं हो रही है, उस वो को जो स्टेबलिश किया हुआ है, उसको जो स्थिर रूप में रखा हुआ है, वह कौन रख रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग का मतलब कुछ एक व्यक्ति, जो कुछ एक समूह ने क्या किया, इसका उदाहरण लेकर के, जैसे उसने सोचा कि देखो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम जो है पॉट बनाते हैं, वी मेक पॉट, वी मेक कंप्यूटर, तो अब कंप्यूटर जो हम बना रहे हैं, तो हम कंप्यूटर बनाए, कंप्यूटर से अलग हो गए, हम कंप्यूटर में नहीं है। हमने घड़ा बनाया और घड़ा से अलग है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति ने विचारा कि भगवान को मानने वाला ने, जो भगवान को मानता है, हु बिलीव गॉड, उसने क्या विचारा, जैसे हम घड़ा बनाते हैं, एज माई आई मेक कंप्यूटर, एज माई आई मेक पॉट, सिमिलर टू गॉड क्रिएट्स दिस यूनिवर्स, परंतु वह उससे अलग है, वह किसी अलग स्थान पर रहता है। वह जिस चीज को क्रिएट किया, जैसे एक कंप्यूटर मेकर कंप्यूटर बनाता है, पर तो कंप्यूटर से अलग है, कंप्यूटर के अंदर नहीं है, इसी तरीके से
गॉड भी संसार को क्रिएट तो करता है, परंतु वह गॉड जो है उसके अंदर नहीं है, कोई अलग ही स्थान है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में, दिमाग में है कि यदि गॉड को, यदि हम, इफ वी बिलीव गॉड इज एवरीवेयर, तो इससे क्या होगा कि गॉड गंदा चीज में भी है, गॉड जो है तुच्छ से तुच्छ चीज में भी है। कर्माणी पश्चिम की व्याख्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? गॉड जो है तुच्छ, गॉड जो है यदि गॉड को हम हर जगह मान ले, तो उन लोगों ने यह सोचा, उन लोगों ने यह विचारा कि उसको हमें तुच्छ से तुच्छ, खराब से खराब चीज में भी मानना पड़ेगा। तो खराब से खराब चीज में क्या, इतना पवित्र चीज जो परमात्मा है, को गंदा में रह सकता है क्या? इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अलग ही, भगवान तो संसार को क्रिएट करता है, परंतु वह कोई अलग ही लोक में रह रहा है। उसका नाम किसने दिया? बहिष्ठ, किसने दिया हेवन, किसने दिया स्वर्गलोक, किसने दिया क्षीर सागर। माने किसी एक स्थान पर रह करके भगवान जो है पूरे संसार को कंट्रोल करता है। यह विचार उत्पन्न हुआ और इससे कितनी बड़ी हानि हुई वो हमें आज पता है कि हम क्या थे और क्या हो गए। भगवान, ये जो वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक जो प्रिंसिपल है कि विष्णु वह है जो सर्वव्यापक है, तो यदि हम भगवान को हर जगह मानते हैं तो हम वो क्रिया नहीं करते हैं जो कि गलत हो, जो कि हमें दुख पहुंचाने का। तो परमात्मा जो है, इसलिए आप बोलते विष्णु कर्माणि पश्यता, करें कि हे मानव, वॉच गॉड्स एक्शंस एंड क्रिएशन। माने भगवान के कर्मों को देखो, भगवान की जो जो एक एक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को देखो, क्योंकि परमात्मा ही इस संसार में क्रिया, परमात्मा जो भी क्रियाएं हो रही है यूनिवर्स में वह परमात्मा ही कर रहा है। इसी बात को जो है महर्षि वेदव्यास जी अपने शब्द में कहते हैं कि हु इज ब्रह्म, हु इज गॉड, तो बोले जन्माद्यस्य यतः, बोल रहे जो संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है उसको कहते हैं गॉड। तो संसार की उत्पत्ति करने वाला, स्थिति करने वाला, प्रलय करने वाला, इसका मतलब हमें यह कभी नहीं समझना चाहिए कि उत्पत्ति अर्थात परमात्मा ने पहले क्या किया, उत्पन्न करने का काम किया, अब वो पूरा हो गया तो पालन करने का काम कर रहा है, अब वो पूरा हो गया तो उसके पश्चात फिर जो है डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। ऐसे सोचने वाला व्यक्ति ही भ्रांति में पड़ गया कि ब्रह्मा नाम का एक हुआ, ब्रह्मा परमात्मा, उसने संसार को क्रिएट किया, विष्णु जो है पालन किया, करता है, और जो है शिव जो है वह क्या करता है, रुद्र जो है संहार करता है। ऐसा समझ लिया। परंतु यदि वह कर्मों को जानता, परमात्मा के कर्मों को यदि जानता, तो इस तरीके की कल्पना नहीं करता। देखो, हर समय हर क्षण परमात्मा जिस भी पदार्थ को बनाता है, जिस भी चीज को क्रिएट करता है, वह क्रिएट भी कर रहा है, वह उसको पालन भी कर रहा है, स्टेबल भी कर रहा है, और साथ साथ हर चीज वह जो है आगे क्रिएट होता जा रहा है। उसमें जिस भी चीज को आप बनाते हो, जिस दिन बनाते हो, उसी दिन से उसमें जो है वह भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, धीरे धीरे उसमें कमियां होने लग जाती है। तो तीनों, मैंने कहा था एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो हम ये ना समझे कि परमात्मा डिस्ट्रॉयर है, परमात्मा जो है
पालन करने वाला है, और परमात्मा जो क्रिएटर है तो कोई अलग चीज है। ये हमारी जो सोच है। अब ये दिन और रात है, हम कहते हैं यहां पर दिन है और कहीं पर रात है। वास्तविक देखा जाए तो हम जहां पर बैठे हुए यहां के आधार पर हम कहते हैं दिन और रात में। जब ऊपर चले जाए, आकाश में चले जाए और वहां से फिर पृथ्वी को देखें तो फिर क्या कहेंगे दिन और रात। आप तो कहने का अभिप्राय है कि सूर्य की जो वह क्रियाएं हैं, सूर्य का जो वह प्रकाश है और पृथ्वी की जो क्रियाएं, हर क्षण जो क्रियाएं हो रही है, इसके आधार पर हम कहते हैं दिन रात कहते हैं। तो ये परमात्मा जो है इस संसार में जो भी कर्म करता है, उस कर्मों को जो भी क्रियाएं करता है उनको कह रहे हैं कि पश्यत सम्यक रूप से जानो, देखो। कुछ एक ऐसा भी व्यक्ति है कि ब्रह्म को कर्ता नहीं मानता, ब्रह्म के कर्तृत्व का निषेध करता है कि ब्रह्म कर्ता नहीं है। ब्रह्म क्योंकि कर्ता जो करेगा वो बंधन में फंसेगा, और यदि भगवान यदि कर्म करने लग जाए तो वह बंधन में फंसेगा। इसलिए ब्रह्म तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वह कभी फंसता नहीं है, वह इसलिए वह कर्ता है ही नहीं। इस विचार को जो मानने वाला व्यक्ति है उसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हमें उनके कर्मों को देखना है। सपोज दैट कि आई हैव वॉच, हमारे पास घड़ी है और घड़ी को हमने देखा, हमने कहा कि भाई घड़ी को किसी ने बनाया है, और घड़ी को जिसने बनाया है ऐसा हमने जब विचार किया और उस विचार के आधार पर जिसने उसको बनाया हमने नाम दिया कि घड़ी बनाने वाले को घड़ी साज कहते हैं, वो घड़ी साज है। और उसके ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे पुस्तक हमने लिख दिया, घड़ी साज के ऊपर साहित्य लिख दिया, किसने ये किया वो किया वो किया। परंतु कल्पना कीजिए जिस दिन यदि ये पता चल जाए कि घड़ी साज है ही नहीं, घड़ी साज ने इसको बनाया ही नहीं है, अपने आप ही यदि बन गया है, तो उसको मानने वाला और उसके ऊपर पुस्तक लिखने वाले जो पुस्तक है सब व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? सब व्यर्थ हो गया, कोई काम का नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति ब्रह्म को कर्ता नहीं मानता है कि ब्रह्म ने संसार को नहीं बनाया है, इस तरीके के जो व्यक्ति को बोलते हैं, अर्थात कर्तृत्व उसके अंदर में नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म को तो स्वीकार करता परंतु ब्रह्म के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता। तो जब ब्रह्म के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता है तो उसको इस चीज को समझना चाहिए, कुछ देर पहले मैंने बोला था कि जो जड़ पदार्थ है उसमें अपने आप गति हो ही नहीं सकती। तो अपने आप गति नहीं हो सकती तो उसमें गति कौन कर रहा है? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि परमात्मा का जो विष्णु का जो कर्म है उस कर्म को देखो। देखना मतलब उसको सम्यकतया उसका ज्ञान प्राप्त करो। देखना का मतलब ये नहीं है, देखना तो हम भी आपको देख रहे हैं, आप भी हमें देख रहे हैं, हम भी देखते हैं, हमने भी देखा, देखते हैं कि जो है सेब जो है, एप्पल जो है वृक्ष से गिर जाता है, हम भी ये देखते हैं। परंतु हमारे देखने में, न्यूटन के देखने में क्या है? न्यूटन ने भी देखा सेब को गिरते हुए, परंतु उससे क्या खोज निकाला? हम भी देखते हैं मछली को चलते हुए पानी में, हम भी देखते हैं पक्षी को उड़ते हुए आकाश में, परंतु हमारे देखने में, और एक जो साइंटिस्ट है उसको जब देखता है तो क्या देखा? उस मछली को देख करके शिप को बना डाला, उस बर्ड्स को देख करके हवाई जहाज को बना डाला। देखना उसको कहते हैं, सम्यक रूप से जानना उसको देखना कहते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के कर्मों को देखने की बात है कि हम परमात्मा के कर्मों को देखें। तो देखने का मतलब है कि उनके कर्मों को सम्यकतया जाने, उनके लॉ को जाने, वो जो कुछ भी इस संसार में क्रिएशन किए हैं, जो भी क्रिएट किए हैं, उसको सही तरीके से जाने, और सही तरीके से जान करके यतो व्रतानि पस्पसे। क्यों हम कर्मों को जाने? क्योंकि उससे, उस कर्म से हम अपने आप को सुधार सकें, उस कर्म से उनके कर्मों का हम अनुष्ठान कर सकें, उनके कर्मों को अपने जीवन में अपना सकें। जैसे परमात्मा ने इस संसार को क्रिएट किया
रहस्यमय चीज को क्रिएट किया, हम भी उन्हीं के क्रिएट किए हुए चीज से रहस्यमय चीज को क्रिएट करें। तो यतो व्रतानि पस्पसे, जिससे हम अपने व्रतों को, अपने कर्मों को, व्रत किसके कहते हैं? व्रत का मतलब होता है, दो चीज होता है। व्यक्ति, घर में बच्चे हैं, माता पिता जैसे कार्य करते हैं बच्चा वैसा ही फॉलो करता है, वैसे ही अनुकरण करता है, इसको व्रत नहीं कहेंगे। परंतु व्रत उसका नाम होता है, व्रत उस कर्म का नाम होता है कि हमारे सामने बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे कर्म हैं, परंतु उन कर्मों में से कौन सा कर्म हमें आगे की ओर ले जाने वाला है, इस चीज को चयन जब कर लेते हैं, उसको जब चुन लेते हैं और उसको चुन करके जब उस कर्म को करते हैं तो उसका नाम व्रत होता है, उसको व्रत कहते हैं। उस व्रत का, व्रत नाम कर्म, तो उसको हम व्रत कहते हैं। तो वो हम अपने कर्मों को सुधार सके। आप यदि देखेंगे, सृष्टि को यदि ठीक तरीके से देखें और देख करके अनुकरण न करें, भगवान का ही सृष्टि का अनुकरण नहीं करना। अनुकरण करेंगे तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान के सृष्टि का अनुकरण करेंगे तो पशु कैसे है आप देख लीजिए, वैसे ही हम करने लग जाएंगे जैसे करते हैं कुछ विचारक। परमात्मा के सृष्टि के कर्मों का अनुकरण नहीं करना है, बल्कि निर्वचन करना है। और निर्वचन का मतलब होता है कि उन कर्मों को में से जो छांट करके जो हमें मोक्ष तक ले जाए, जो हमें जीवन को आगे बढ़ाए, इन कर्मों को करना निर्वचन करना होता है। तो उसी का नाम व्रत होता है। तो उन व्रतों को हम कर सके, करने में समर्थ हो सके, इसलिए परमात्मा के कर्मों को देखना है। क्यों? इंद्र से युज्य सखा, क्योंकि जो इंद्र है, इंद्र जो आत्मा है, इंद्र माने आत्मा, इस पर भी थोड़ा मैं बोल दूं क्योंकि अब तो समाप्त होने वाला है। इंद्र से युज्य सखा अंतिम है। तो हम लोग इंद्र कहने से क्या सोचते हैं? इंद्र माने समझते हैं कोई एक, जब ही इंद्र शब्द आया तो एक मस्तिष्क में कुछ बन जाता है, कोई बस ऐसा देवता, और टीवी में देख करके बस वर्षा देने वाला जो इंद्र है वो है। परंतु नहीं, आप इंद्र, इंद्रिय का नाम तो सुने हो, इंद्रिय का नाम सुने कि नहीं? इंद्रिय, इंद्रिय मीन्स सेंसेस। इंद्रिय कैसे बना है? इंद्र से इंद्रिय बना है। इंद्र शब्द से इंद्रिय शब्द का निर्माण हुआ है। तो इंद्रिय का मतलब होता है इंद्र जिसके द्वारा किसी चीज को जानता है। इंद्र जिसके द्वारा किसी चीज को जानता है, जिससे जानता है, वो इंद्रिय है। तो इंद्र आंख से रूप को जानता है, कान से शब्द को जानता है, जिह्वा से रस को जानता है, त्वचा से स्पर्श को जानता है। इसलिए इंद्र आत्मा है और आत्मा इस इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए इंद्र और इंद्रिय का संबंध है। तो वह इंद्र जो आत्मा है, उस इंद्र आत्मा का सबसे सर्वोत्तम युज्य जो सखा है, जो फ्रेंड है, जो मित्र है, वह विष्णु है। उससे बड़ा फ्रेंड कोई है ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड उसी को कहते हैं कि पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यान गुहति गुणान प्रकटी करोति और आपदगतम रक्षति दताति काले सन्मित्रम लक्षण वदन्ति संत। सच्चे मित्र वो होते हैं, ध्यान से सुनना, मित्र वो नहीं होता है कि आप दोस्त बन गए, आपको कोई भड़का दिया, आपने कुछ का कुछ उलट पुलट कर दिया, आपके मन में ऐसा हो गया। दोस्त वही है जो पापान निवारयति, जो पापों को आपके अंदर से हटाता है, जो अच्छे कार्यों में जोड़ता है, उसको मित्र कहते हैं। तो बताओ, यदि हम परमात्मा के व्रतों का जब अनुकरण, निर्वचन करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वह परमात्मा हमें क्या करता है? वह हमें मित्र होकर के, हमारा मित्र बन करके हमारे अंदर से समस्त बुराइयों को, पापों को दूर कर देता है। इसलिए इंद्र से युज्य सखा, जितना उत्तम सखा, जितना उत्तम मित्र, फ्रेंड परमात्मा है आत्मा का, इंद्र का, उतना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया के मित्र आपको धोखा दे सकता है,
दुनिया का मित्र आपको नुक्ताचीनी कर सकता है, परंतु परमात्मा को यदि हम मित्र बनाते हैं, ईश्वर को यदि हम मित्र बनाते हैं, विष्णु को यदि हम मित्र बनाते हैं, तो वो कभी भी हमें धोखा नहीं देने वाला है। जितने अंश में हमने उसको मित्र बनाया, उतने अंश में हमारे मन में उसने हमें संस्कार डाल दिया और उसके आधार पर हमारा अच्छा कर्म होगा। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।